Good morning, students. Hope you all are good and staying at your home safely. So, students, previously I had stuck my lecture on the format of a letter. So, today I will be starting with the format of a letter. In my previous video, I had explained you what is letter, then the marking scheme of a letter, and then the what is how letter is divided into two parts, that is a formal letter and informal letter. And I had explained you the definition of a formal letter, that these letters follow a certain pattern and formality, that they are strictly kept professional in nature and directly addressed to the issue concerned. Now after that I had explained the tips for writing a letter, that identify the type of a letter, कि आप कौन सा लेटर किस टाइप का आपको लिखना है. Then make sure you open and close the letter correctly. Establish the main intent of the letter. Be careful of the language and the length of the letter. Then I had explained you the topic for a letter, like letter to editor, letter for complaint, then letter for inquiry, letter for placing an order. Then I explained you the format of a letter. So I am starting my lecture today from the format of a letter. Here I had explained you I had written the format of a letter, like sender's address, then you have to leave one line, then date, then again you have to leave one line, receiver's address, then you have to leave one line, then the subject, leave one line, salutation, leave one line, then the main body of the content, the first paragraph. After writing down the first paragraph, leave one line and write down the paragraph 2, then leave one line, write down paragraph 3, and then the complementary closure or the name of the sender's name. Now as you all know that in the 3 paragraph you have to write down the first paragraph, that is the introduction of yourself, and then the second paragraph, the matter in the detail. Now the third paragraph you have to conclude your letter by giving the solution. Now today students, I had taken a topic that is a complaint letter. Now complaint letter, it is a type of a letter written to address any type of a wrongdoing, offense, grievance, resentment of arising out of product or सर्विसेज. सो कंप्लेन लेटर क्या होता है, आपको भी पता है. कंप्लेन लेटर वो होता है जो कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़, जो भी आपकी कंप्लेन है उसको बताने के लिए होता है. सो आप लेटर लिखते क्यों, वाई यू आर राइटिंग अ कंप्लेन लेटर? As you all know that it is a fundamental duty of or a right of any citizen to seek justice arising out of injustice. मतलब कि हमें जस्टिस चाहिए रहता है जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर करी हो. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन ऑर्डर्ड आईफोन फ्रॉम अ फ्लिपकार्ट. ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट से एक आईफोन ऑर्डर किया, या मान लो फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन ऑर्डर्ड अ सैमसंग फ़ोन फ्रॉम अ फ्लिपकार्ट. बट वो फ्लिपकार्ट में जब वो आया तो वो डैमेज फॉर्म में आया, तो क्या होगा? आप कंप्लेन लेटर लिखोगे ना फ्लिपकार्ट को, या फिर ओनर दैट द डिस्ट्रीब्यूटर, कि भाई हमारे पास जो हमने जो ऑर्डर किया था फ़ोन, वो क्या हुआ है, दैट कम्स इन अ डैमेज फॉर्म. So that is also the injustice which has happened with you. So you need to seek that justice. And it is also like आपको उसको लिखना, आपको like you are also inspires others troubled consumers, and also the default, like the defaulter may seek the responsible and responsive for the liable things. तो ठीक है, वो उनको अपनी गलती का एहसास हो और वो आपका वो सारी चीज़ें क्या हो, रिप्लेस कर सके. तो आप इसलिए भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को लेटर, कंप्लेन लेटर लिखते हो. नाउ हियर आई हैड कंप्लेन लेटर कितने टाइप्स की हो सकती हैं. कंप्लेन लेटर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. तो कंप्लेन लेटर कैन बी ऑफ 2 टाइप मीन्स one you can say the professional letter, professional complaint letter, and the second one is your पर्सनल कंप्लेन लेटर. अब पर्सनल कंप्लेन लेटर क्या हो सकता है? पर्सनल लेटर, कंप्लेन लेटर, दैट इज द टाइप ऑफ लेटर यू आर राइट ऑन योर ओन इंडिविजुअल level pertaining to your individual grievances, that is considered as a personal letter, personal complaint letter. यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ. ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है. दीज आई हैव रिटन फॉर योर नॉलेज कि कंप्लेंट लेटर में चीज़ें आती क्या क्या हैं.
इसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये कोई एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेटर लिखने को एग्ज़ाम में आएगा। व्हाट इज़ कंप्लेन लेटर, टॉपिक फॉर राइटिंग अ कंप्लेन लेटर, ये सब कुछ नहीं आएगा। जो इस बार पेपर में इसलिए दिया था मैंने, क्योंकि मैंने अभी तक आपको लेटर लिख के नहीं दिखाया था, या सिर्फ मैंने फॉर्मेट दिया था लेटर का, तो उसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन सिंपल बना दिए थे। बट जब आपका पेपर आएगा 40 मार्क्स का या 80 मार्क्स का, तो उसमें प्रॉपर लेटर आपको लिखना होगा, ठीक है। सो here the topic for writing a complaint letter is like the goods arrived in a damaged condition, that I had given you one example of the Samsung phone which you have ordered from a Flipkart. सेकेंड इज मिस्टेक इन प्रिपेयरिंग द इन्वॉइस। ओके, उससे पहले हमने अभी आपको मैं आपको क्या समझाई थी, पर्सनल और प्रोफेशनल लेटर। पर्सनल कंप्लेन लेटर जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फ्लैट में रह रहे हो, रेंटेड फ्लैट में रह रहे हो या सोसाइटी बेस्ड फ्लैट में रह रहे हो, वहाँ पर आपके जो वाटर टैंक है या जो भी सप्लाई ऑफ द वाटर पाइप है वो ख़राब हो चुका है, तो आप अपने पर्सनल लेवल पे वो लेटर लिखकर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को बताओगे कि येस आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई वाटर पाइपलाइन विच इज़ क्रिएटिंग अ लाइक क्योस इन माई वाटर सप्लाई, और वो टैप से वाटर नहीं आ पा रहा, तो वो एक कंसर्न अथॉरिटी या मेंटेनेंस अथॉरिटी को फ्लैट के आप लिखोगे, या आप अपने फ्लैट के जो भी ओनर है, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो वो लिखोगे। सेकेंडली प्रोफेशनल लेटर क्या होता है, दैट इज़ अ लेटर, दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ लेटर दैट इज़ रिटन on the behalf of an organization pertaining to the issue that are affecting the organization as a whole. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप ही लोगों का एक एग्जाम्पल दूंगी प्रोफेशनल लेटर में, प्रोफेशनल कंप्लेन लेटर में, कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करते हो, कोई भी टीचर का कुछ समझ में नहीं आती है पढ़ाई, तो आप लोग एक लेटर लिखते हो ना प्रिंसिपल सर को, ऑन द बिहाफ ऑफ क्लास 8th ए वी आर राइटिंग दिस लेटर कि भाई हमें ये टीचर की पढ़ाई नहीं समझ में आ रही, तो वो क्या हो गया, वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव रिटन अ लेटर दैट यू हैव अ कंप्लेन अबाउट दिस टीचर, अबाउट दैट थिंग और अबाउट एनीथिंग, so that is a professional complaint letter. Now here we come with a topic for writing a complaint letter. So the first is the goods arrived in a damaged condition that I had explained you. मिस्टेक इन प्रिपेयरिंग द इन्वॉइस, आपने परचेज किया है 200 का, बट जो इन्वॉइस बिल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 500 का, सो दैट इज ऑल्सो दैट ऑल्सो कम्स इन अ कंप्लेन लेटर. क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स इज नॉट व्हाट was ordered, like for example you have an ordered for a 5 packet of anything and it is coming in a 3 packet only, then the goods are different from what you have ordered and what it comes. ठीक है, आपने ब्लैक ड्रेस बोला था बट आई कौन सी है, यू हैड रिसीव्ड अ डार्केस्ट ब्राउन ड्रेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज द मिसबिहेवियर ऑफ अ स्टाफ एंड अ सेल्समैन. नेक्स्ट इज अदर्स, रॉन्ग डूइंग इन पब्लिक, rash driving of the DTC drivers, poor treatment of street dogs or any other. So these are the topic which are included in a complaint letter. Now we will come with the, I had written one example for you all so that you can see how I had written a letter and you and how you all are going to write a letter. For example, I had written a letter that is a see, I had written a letter. I write a letter to the editor of a local daily newspaper complaining about the school bus driver for rash driving and overcrowding of buses causing risk to the lives of innocent school children. You are दीप्ति दीपक C4C जनकपुरी न्यू दिल्ली. अब इस चीज़ का ध्यान देना बेटा कि मैंने जो लेटर लिखा है उसमें ये देखो मैंने एक फॉर्मेट बेस पे लिखा है. अगर इस चीज़ को छोड़ दो, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए मैंने लिखा है C4C जनकपुरी न्यू दिल्ली. यहाँ पर एड्रेस मेंशन है, ठीक है. यू आर अ दीप्ति दीपक C4C जनकपुरी न्यू दिल्ली. यहाँ पर आपको एड्रेस नहीं लिखना है, ऊपर नाम नहीं लिखना है. लाइक यू डोंट हैव टू राइट दीप्ति और दीपक, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन C4C जनकपुरी न्यू दिल्ली. देन आई हैव लेफ्ट वन लाइन एंड आई हैव रिटन May 5, 2020. Now the next one is the letter to the editor of a local daily newspaper. तो अब देखो ये एड्रेस कहाँ का दिया गया है, न्यू दिल्ली का दिया गया है,
तो आपको एडिटर भी न्यू दिल्ली का ही मेंशन करना है। ये ना हो कि आप जो एड्रेस है सिटीज़न हो आप उस सिटी के न्यू दिल्ली के, मगर लिख किसको रहे हो, प्रयागराज। नो, यू हैव टू राइट डाउन द सेम टू द एडिटर ऑफ द सेम सिटी। सो द एडिटर, द ट्रिब्यून, महात्मा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली। अगर आपको जैसे मान लो अगर वहाँ पर सिटी का नाम मेंशन नहीं है लेटर में, एग्जाम्पल में, या तो आप वहाँ पर क्या सैम्पल पेपर के उसमें अगर सैम्पल एग्जाम्पल आता है लेटर का, तो उसमें अगर कहीं भी एड्रेस मेंशन नहीं है या सिटी मेंशन नहीं है, देन यू कैन गिव द सिटी नेम ऑफ योर, यू हैव टू गिव योर सिटी नेम लाइक प्रयागराज। यू हैव मेंशन C4 से झलवा, प्रयागराज। देन May 5, 2020 द एडिटर द आई नेक्स्ट। अब हमारे यहाँ लोकल डेली न्यूज़पेपर क्या है, आई नेक्स्ट आता है, ऐसे बहुत आते हैं। तो आपने वहाँ पर क्या डाला, द आई नेक्स्ट सिविल लाइन्स प्रयागराज, बट यहाँ पर जनकपुरी दिया गया है, न्यू दिल्ली। वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर क्या है, द ट्रिब्यून। आप कोई भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल देना, ज़रूरी नहीं है कि अगर लोकल डेली न्यूज़पेपर नहीं पता है तो हम कौन सा डालें। आप कोई भी लोकल डेली न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण भी चलता है हर जगह, टाइम्स ऑफ इंडिया भी चलता है हर जगह, कुछ भी चलता है, तो आप वहाँ का भी डाल सकते हो। आई हैड मेंशन न्यू दिल्ली। नाउ अ सब्जेक्ट, सो द टॉपिक इज़ फॉर द रेकलेस ड्राइवर्स, ठीक है, जो रफ ड्राइविंग करते हैं, बस ड्राइवर्स। तो रिगार्डिंग रेकलेस ड्राइविंग ऑफ स्कूल बस ड्राइवर्स। Now I had started my letter, sir or madam, through the columns of your esteemed newspaper, I wished to draw the attention of the concerned authorities towards the grave issue of rash driving being done by school bus driver that pose a threat to the lives of innocent school children and other people. So students, here you can see that I had start my letter from the like giving an attention to the editor. तो मैंने उनको एडिटर को उनको खुद से एक मैंने कंसर्न दिखाया है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द ग्रेव इशू। अब यहाँ पर देखो मैंने एक सर्कल इसलिए बनाया है, ये दोनों, ये आपको नहीं बनाना है, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए बनाया है सो दैट आप ये पूरी लाइन अच्छे से लर्न कर लो। जब भी कंप्लेन लेटर लिखो तो आप इस फॉर्मेट से भी अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हो। बाय दीज लाइन, बाय राइटिंग दीज लाइन you can start your letter like through the columns of your esteemed newspaper I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the grave issue of। अब हमारा यहाँ पर क्या इशू है, रैश ड्राइविंग। अगर आपको कोई कंप्लेन करना है कि हमारे यहाँ वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, थ्रू द ग्रेव इशू ऑफ not supplying a proper water in like wing A and wing B of this apartment, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ आई हैड रिटन हेयर after leaving one line I had written again the next paragraph, driving in a zigzag manner on a packed roads, crossing speed limit, not following traffic lights has become very common. Despite such strict regulation regarding speed, none of these drivers seems to follow them. This shows that there is a lack of इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। तो आपका सेकेंड पैराग्राफ क्या बता रहा है, जो भी इशू क्रिएट हो रहा है, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द फॉर्मेट ऑफ द लेटर क्या दैट यू हैव टू इन द सेकेंड पैराग्राफ यू हैव टू टेल द एडिटर अबाउट द मैटर इन डिटेल। तो आपने यहाँ पर मैटर क्या किया है, डिटेल में बताया है कि ड्राइविंग इन अ जिगजैग मैनर ऑन अ पैक्ड रोड, क्रॉसिंग स्पीड लिमिट, नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक लाइट्स has become very common for these drivers. Despite such strict regulation regarding speed, none of these drivers seem to follow them. This shows that there is a lack of implementation, ठीक है। हमने अपना मैटर इसको
6 लाइन में या 7 या 8 लाइन में हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया. नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ वी आर कंक्लूडिंग आवर लेटर बाय सॉल्यूशन आल्सो. सो आई हैड लाइक मैंने जो लेटर का लास्ट पैराग्राफ वो लिखा है उसमें मैंने सॉल्यूशन भी मेंशन किया है. नाउ आई विल टेल यू हाउ आई हैड मेंशन इट, that by addressing this issue it is hoped that the public awareness towards the dangers of reckless driving can be raised. It is also the time for the traffic authorities. अब यहाँ से देखो मैंने solution दिया है. It is also the time for the traffic authorities to take the strong measures against the reckless drivers, which include levying heavy fines and forfeiting of their license if they are found guilty of breaching the traffic रूल्स. सो यहाँ पर मैंने क्या सोल्यूशन दिया है कि भाई जो भी ट्रैफिक अथॉरिटीज़ हैं उनका टाइम आ चुका है कि उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग मेजर एक्शंस ले. अगर कोई रेकलेस ड्राइविंग करता है ड्राइवर और अगर वो गिल्टी फाउंड होता है तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इम्पोज करें और साथ ही साथ क्या करें, दे जस्ट फॉरफीट देयर लाइसेंस ऑल्सो. और सो दैट लाइक इफ़ दे फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग द ट्रैफिक लूप. ब्रीचिंग मीन्स जो तोड़ना, ठीक है, टू लाइक आप वहाँ से कहते हैं ना ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो आपको हैवी पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी. सो देयर हेयर आई हैव गिवन माई सोल्यूशन इन द थर्ड पैराग्राफ. तो आपको अपना जो लेटर है वो 3 पैराग्राफ में लिखना रहेगा. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, सेकेंड पैराग्राफ में द मैटर इन डिटेल, थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करना रहेगा अपना लेटर. नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, मतलब कि योर फेथफुली या योर सिंसियरली एंड देन द नेम दीप्ति एंड दीपक. ठीक है, आपने ऑलरेडी यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन कर रखा है. ऊपर दीप्ति या दीपक नहीं मेंशन करोगे, आप बस नीचे यहाँ पर दीप्ति या दीपक मेंशन करोगे. नाउ स्टूडेंट्स आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन हेयर कि पहले आप क्या करते थे, टू लिखते थे, टू द एडिटर, टू द प्रिंसिपल. अब आपको टू नहीं लिखना है. इट इज़ लाइक आपको अब टू नहीं लिखना है, टू नहीं लिखा जाता है. तो अब आप टू नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट डाउन द एडिटर. अब यहाँ पर देखो मैंने कितने, मतलब कि आपका यहाँ पर इसको अगर मैं हटा दूँ इस चीज़ को, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था. यहाँ पर देखो मैंने क्या चीज़ स्टार्ट करी, मैंने सारी चीज़ें सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट या सैल्यूटेशन मैंने जस्ट रेड लाइन के बगल से स्टार्ट करी है. एंड आई हैड लेफ्ट वन लाइन. अब आपको ये नहीं करना है जनकपुरी के नीचे एक लाइन छोड़ना तब न्यू दिल्ली लिखना है, नहीं. जब आप पूरा सेंडर्स एड्रेस लिख लोगे तब एक लाइन छोड़ना है, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद पूरा रिसीवर्स एड्रेस लिखो. ये ना हो द एडिटर के बाद एक लाइन छोड़ रहे हो, फिर एक महात्मा गांधी लिख रहे हो, फिर लाइन छोड़ के न्यू दिल्ली. पूरा एक आपको 3-4 लाइन में आप पूरा सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट, देन अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन सर मैडम, देन अगेन यू हैव टू लीव लाइन एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर लेटर. सो अब मैंने यहाँ पर भी आपको बताया थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द ग्रेव इशू. यहाँ तक लेटर में अपना लर्न कर लो, यहीं से लेटर अपना स्टार्ट करना हमेशा. अब ये देखो मैंने एकदम रेड लाइन से सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं. सो आई वॉन्ट यू ऑल ऑल्सो टू स्टार्ट योर लेटर बाय द नेक्स्ट टू द रेड लाइन. और हमेशा लाइन छोड़ के लिखना. मैं लाइन छोड़ के इसलिए कह रही हूँ लिखने को क्योंकि ये इस तरीके से लेटर एकदम द लेटर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट लुक्स नीट एंड क्लीन. तो जो भी एग्जामिनर होगा या जो भी टीचर होगी वो आपका लेटर अच्छे से क्लियरली देख पाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट लेटर में भी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे अगर कोई एड्रेस मेंशन नहीं किया गया है या कोई नाम नहीं मेंशन किया गया है तो तब आप क्या कर सकते हो. जैसे इस वाले में तो दिया गया ना C4C जनकपुरी, न्यू दिल्ली, URA, दीप्ति एंड दीपक और एक लोकल डेली न्यूज़पेपर को लिखना है. तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें मेंशन है. बट अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन या सिटीज़न का नाम ना दिया गया हो तब उस केस में आप क्या करोगे, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बिफोर दैट आई वॉन्ट यू ऑल to draw the attention here also. This is one example which I want you all to do the
work. Like write a letter to the HMT Corporation Chandigarh complaining that the wristwatch you recently bought from them does not function properly and ask for replacement. You are दीप्ति दीपक गुप्ता 450 सेक्टर 20 चंडीगढ़. अब देखो ये मैंने इसी के अकॉर्डिंग बेसिस पे दिया, इस वाले एग्जाम्पल के ही बेसिस पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया. इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको हिंट देती हूँ. यू विल राइट डाउन 450 सेक्टर 20 चंडीगढ़ हेयर, देन वॉट एवर द डेट यू आर गोइंग टू मेंशन इट. द अब यहाँ पर एडिटर को नहीं लिख रहे हो, ठीक है. अब यहाँ पर किसको लिख रहे हो? यू आर राइटिंग टू द HMT कॉरपोरेशन. तो यहाँ पर लिखोगे द मैनेजर HMT कॉरपोरेशन चंडीगढ़, क्योंकि हमारे में क्या दिया गया है? चंडीगढ़. तो वहाँ पर क्या लिखोगे? HMT कॉरपोरेशन, द HMT कॉरपोरेशन, सॉरी द मैनेजर HMT कॉरपोरेशन चंडीगढ़. देन सब्जेक्ट में आप मेंशन करोगे व्हाट इज़ द वॉट एवर द कंप्लेन यू हैव टू मेंशन दैट द रिस्ट वॉच आई रिसेंटली बॉट फ्रॉम यू वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. इस तरीके से, या रिप्लेसमेंट ऑफ द रिस्ट वॉच विच वॉज बॉट रिसेंटली. इस तरीके से भी आप लोग अपना सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो. सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए. फिर सर और मैडम, अब यहाँ पर थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर नहीं लिखना है. वाई? बिकॉज अब आप एक न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो. तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो? दिस इज़ टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन सर, या दिस इज़ टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन दैट रिसेंटली ऑन 5th of May 2020 I had brought an wristwatch from your I have bought a wristwatch of your company, that is HMT, and that is not functioning properly, so I want a replacement for that thing. तो इस तरीके से आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हो. लाइक दिस इज़ टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन दैट आई हैड बॉट अ रिस्ट वॉच फ्रॉम योर कंपनी. इस तरीके से आप अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हो. तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसका भी पूरा लिख के दिखाऊंगी, प्लस मैं वो भी लेटर लिख के दिखाऊंगी जिसमें आपका लेटर में किसी का नेम ना दिया गया हो पर्टिकुलर, या पर्टिकुलर स्टेट या सिटी का नाम ना दिया गया हो एग्जाम्पल में. तो वो लेटर आप किस बेसिस पे लिख सकते हो? यहाँ पर तो लेटर में नेम दे दिया गया है, उसका एड्रेस भी मेंशन किया गया है, बट मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कैसे आपको वो लेटर लिखना है जिसमें नेम ना मेंशन हो. सो till then you please students, you have to write down this letter in your own words. So please see it properly that I had written this letter, and I will be sending you the pic of this letter also. This is your homework. I'm writing this down as a homework so that you will have this in your homework and you can write down in your homework. ठीक है. So wait for my next video. In the next video I will be explaining you that letter also. So till then, take care and thank you.